हम क्या करते हैं, एफबीडी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. Okay, so suppose this is horizontal part and this is vertical part. Okay, so okay, at the point A there is hinge support. Hinge support means how many unknowns, how many reactions? 3. Two. Two, 2. right? हाँ, that is 2. perpendicular to the surface and parallel to the surface. तो मैं यहाँ पर एक perpendicular and parallel यहाँ पर दिखा देता हूँ, right? इनको नाम भी दे देते हैं. That is HA and suppose this is VA. Okay, so this is HA and VA. Okay, हाँ. After that, after the point A, next is 5 kilonewton downward point load. So 5 kilonewton downward point load will be as it is. उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो वो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ. That is downward. Okay. मन कांकरिया. कुछ पूछना है क्या मन? Okay, so next is that 5 kilonewton point load, that will be as it is. After that, next is 10 kilonewton meter anti-clockwise moment. So that moment also as it is. So this is moment anti-clockwise. Okay, so this is 10 kilonewton. Sorry, this is 5 and this is 10 kilonewton meter. So 10 kilonewton meter. Okay. हाँ. After that 10 kilonewton meter, after 1 meter of that 10 kilonewton meter moment, there is UDL, right? UDL having an intensity of 2 kilonewton per meter for a 3 meter. So what will be the total load of that UDL? इसका total load कितना आएगा? 6 kilonewton. 6, right? हाँ, 6 kilonewton. तो फिर ये 6 kilonewton में यहाँ पर दिखा देता हूँ. So suppose this is 6 kilonewton. और फिर मैं यहीं पर मैं डिस्टेंसेस भी दिखा देता हूँ. सो नाउ डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ए. So see, in problem 1 meter, 1 meter, 1 meter, these distances will be as it is. So this 1 meter, after that this second 1 meter and this third 1 meter, right? This will be as it is. After that this 1 meter, the distance of this point load, that is 6 kilonewton, from the point B, right? What is the distance of this 6 kilonewton from the point B? B से कितने distance पर आएगा ये? 1.5. 0.5? 1.5. 1.5 ना? Yes, 1.5 na, 3 divided by 2, that is 1.5. Yes, sir. So 1.5 meter from this side or 1.5 meter from this side. Okay. Okay. After next is point B, and point B is having which type of support is this? Point B पर कौन सा support है? Roller. Roller. And for roller, which type of unknowns will be there? Vertical, right? One. Vertical, that means perpendicular to the surface. So here that unknown reaction and name for that unknown reaction will be RB. Okay, so this is RB. So I think horizontal part is over. तो horizontal part यहाँ पर खत्म हो गया, right? जो भी था. Now vertical part. So vertical part अगर आप देखोगे, so there is vertical part BC having a length of 2 meter. तो ये 2 meter उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में, राइट? तो ये उन्होंने दिया है 2 मीटर. तो मैंने 2 मीटर का ये वर्टिकल पार्ट मैंने ड्रॉ किया. अभी क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ लोड इज हैविंग दैट वर्टिकल पार्ट बीसी. ये कौन से टाइप का लोड है बीसी पर? Trapezium. ट्रेपेजियम, राइट? ओके, सो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट ट्रेपेजियम इनटू द पॉइंट लोड? क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल और Rectangle and ट्रायंगल को triangle. सेपरेट करेंगे. राइट. तो सपोज मैंने रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मैंने अगर सेपरेट किया, मतलब मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की. ओके, तो बोलो आप रेक्टेंगल का वैल्यू कितना आएगा? 2 kilonewton. मतलब आपने क्या किया, R इज इक्वल्स टू, उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 1 है
एंड वर्टिकल डायमेंशन उसका 2 है, सो 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 किलो न्यूटन। कहाँ पर एक्ट होगा ये, कितने डिस्टेंस पर एक्ट होगा? 1 meter हाँ, 1 from मीटर C. फ्रॉम सी और 1 मीटर फ्रॉम बी, राइट, बी और सी, एट 1 मीटर फ्रॉम बी और सी। अभी ये 1 मीटर कहाँ से आया, 1 मीटर कहाँ से आया, वर्टिकल डिस्टेंस Half इज of 2 2. मीटर, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब उसका हाफ, दैट इज 1 मीटर, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, इज इक्वल्स टू 1 मीटर फ्रॉम बी। ये हो गया रेक्टेंगल का। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या आएगा? Half into 2 into 2. हाँ, 1/2 इंटू बेस। 2 इंटू 2 कैसे आया? ये 2 तो समझ में आ गया कि ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ना, ये ट्राइंगल का वर्टिकल डायमेंशन ये, तो ये तो 2 आ गया, बराबर। तो इंटू 2, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 2 कहाँ से आया, वो तो 3 है ना। 3 So minus 3 1. minus 1 will say. हाँ, 3 - 1, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, राइट। इतना ही अगर पार्ट चाहिए तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, सो दिस वैल्यू ऑफ दिस coordinate is that 3 kilonewton per meter, right? And we want only the triangular portion, so you have to subtract this 1 kilonewton per meter from this 3, so that means यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, that is 3 - 1, है ना। So 3 - 1 means 2, so 1/2 into 2 into 2, so 2 cancel हो जाएगा, राइट। और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगेन 2 किलो न्यूटन। एट कितने डिस्टेंस पर रहेगा वो? 0.5 from B. 0.5 फ्रॉम बी। 0.5 कैसे आया? 1/3 of 2, sir. हाँ, तो 1/3 ऑफ 2 क्या है, 0.5 आता है, 0.6. नहीं sir, 0.67 आता होगा ना कुछ तो, है ना। सो एट 0. 1, हाँ, 1/3 ऑफ 2 दैट मीन्स 0.67 मीटर, है ना। फ्रॉम फ्रॉम विच पॉइंट? B. बी, राइट। सो फ्रॉम बी, तो बी से, तो मैं यहां से अभी क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे दिखाने पड़ेंगे दोनों, राइट। तो मैं यहां पर दिखाता हूं दोनों पॉइंट लोड, एक यहाँ पर सेंटर में और एक थोड़ा नीचे, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.67, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.67, whereas this distance is so this distance is 1 meter, 1 meter, and this is 0.67 मीटर। ओके, हाँ, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, इसमें अगर कुछ भी अगर डाउट है, ये जो वर्टिकल पोर्शन का, इसमें डाउट आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेपेजियम में हो सकता है। ट्रेपेजियम का कैलकुलेशन अगर समझ में आएगा तो बाकी तो अपना रेगुलर वाला कैलकुलेशन है। ट्रेपेजियम का कैलकुलेशन समझ में आया क्या, साक्षी? नहीं सर। नहीं, ओके। भूमि? यस सर, समझ लो। ओके, तो मैं देखो फिर से एक बार बताता हूँ आपको यहाँ पर, राइट। ये आपका ट्रेपेजियम था, राइट। तो ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये रेक्टेंगल, ये अभी आपको जो यहाँ पर दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का जो कैलकुलेशन होगा, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज 1 एंड वर्टिकल डायमेंशन इज 2, वो उन्होंने दिया था 2 मीटर है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 किलो न्यूटन, राइट। और रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहाँ पर होता है, उसके डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। अभी उसका जो डिस्टेंस दिया है वो वर्टिकल डिस्टेंस दिया है ना, दैट इज 2 मीटर, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 मीटर, तो इसीलिए वो आ गया 1 मीटर पर। और नेक्स्ट जो था आपका ट्रायंगुलर पोर्शन, राइट, ये वो यहाँ पर, राइट, ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन था, ट्रायंगुलर पोर्शन का अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 इंटू बेस, मतलब ये हमने 3 - 1 किया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3 था, 3 में से ये रेक्टेंगुलर पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, सो दैट इज 3 - 1। एंड height means vertical dimension, vertical dimension is 2, so 1/2 into 2 into 3 - 1 is again 2, so 1/2 into 2 cancel हो जाएगा, एक 2 बचेगा, so that is triangular portion is 2 kilonewton at, so triangle का centroid कहाँ पर होता है, centroid of triangle is at a distance of 1/3 from the maximum intensity, 1/3 of this distance is 2 meters, so 1/3 of 2, so 1/3 of 2 that is 0.67, and from maximum intensity means maximum intensity is at the point B,
So therefore 0.67 meter from the point B. So that's why we have shown here that is 0.67 meter from the point B. So this is our, ये जो पहला जो 2 kilonewton वाला था ये अपना rectangular load है and this is our triangular load, right? So this rectangular load and this is triangular load. Okay, तो अभी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. प्रेरणा बढ़ जाते, बढ़ जाते. वेदांत त्रिवेदी, यस सर. समझ में आया क्या वेदांत? सर. ओके. आदिति, Yes, sir. अनुजा, Yes, sir. ओके. Yes, sir. कोमल, Yes, sir. हाँ बढ़ जाते. समझ में आया क्या तुझे? प्रेरणा, तुषार, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. ओके. ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन करते हैं. सो नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी हैव थ्री अननोन्स, दैट इज एच ए, वी ए एंड आर बी, राइट? सो आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, वी हैव थ्री अननोन्स, एच ए, वी ए एंड आर बी. तो आप लोग बताओ पहले कौन सा इक्वेशन लेते हो, कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए? बोलो. हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है तीन, पहले कौन सा लेते हो? Sir, CD. Summation of CD. f(x). समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं. मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो कौन बोलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स? हैंड रेज करो. वही लोग बार बार वही लोग बताते हैं, बाकी कोई बोलता ही नहीं है. खुशी, इंगड़े खुशी, Yes, sir. बोल समेशन ऑफ एफ एक्स. चुकलं तरी चालेल. खुशी, प्रांजल, भोंगड़े प्रांजल, आप लोग अगर बोलोगे नहीं तो आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कैसे समझेगा? सिलेक्टेड लोग है वही आंसर देते हैं. ओके, सिद्धांत आप बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स. Sir, HA हाँ, minus 2 is equals to 0. right. HA minus 2 is equals to 0 because there are three horizontal forces. First one is HA, that is unknown, and after that this 2 kilonewton and 2 kilonewton are going in left direction, therefore that minus. Okay, so HA is equals to 4 kilonewton. इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 kilonewton. And answer is in पॉजिटिव, राइट? आंसर किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है. पॉजिटिव में आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही है, राइट? एंड वी हैव कंसीडर्ड इट्स डायरेक्शन एज अ राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पर ये राइटवर्ड डायरेक्शन आ गया. ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा यूज करो? Momentum. एफ एक्स हो गया. Moment. मोमेंटम नहीं, मोमेंट है ना. ओके, हाँ मोमेंट. ओके, कहाँ पर लेना है मोमेंट? कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर. ओके, तो हैंड रेज करके रखो, मैं पूछता हूँ किसी को.
summation of moment. Aniket, -10 plus 5 -10 plus 5 हाँ हाँ plus 6 into हाँ 4.5 हाँ minus RB into 6. हाँ हाँ Uh, 2 minus 2 into 0.67 हाँ minus 2 into 1. -2 into 1 पुढे पुढे काय is equals to 0. इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये अभी बताया अनिकेत ने. यश, सर रॉन्ग है. बोलो क्या रॉन्ग है. सर वो 5 5 into 1 आएगा पहले. हाँ 5 into 1 लिखना पड़ेगा, राइट. वो 5 into 1 5 आता है, लेकिन वो लिखना चाहिए, Yes. राइट. ओके, और बाकी बाकी सही है क्या. No, sir. नो सर वो 10 भी क्या गलत है फिर. वो 10 हाँ हाँ. 10 को क्या यश. सर राइट है, बाकी का राइट है. राइट है ना. 10 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यस सर. 10 इज ऑलरेडी मोमेंट है ना. 10 जो दिया है वो ऑलरेडी मोमेंट के टर्म में दिया है, उसको फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट. ओके, तो देखो मोमेंट एट ए अगर लिया तो सबसे पहले आएगा एच ए एंड वी ए, बोथ आर पासेस थ्रू पॉइंट ए, देयरफॉर देयर मोमेंट इज 0. तो एच ए और वी ए का मोमेंट 0 हो गया. आफ्टर दैट 5 किलोन्यूटन, 5 किलोन्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. देयरफॉर इट इज प्लस. सो 5 into डिस्टेंस इज 1, तो मैंने लिखा 5 into 1. After that, this 10 kilonewton meter, it is rotating in anti-clockwise direction, therefore it is minus. So -10, right. Okay. हाँ, उसके बाद 6 kilonewton. 6 kilonewton is rotating in clockwise direction, therefore it is plus. So +6, and distance is यहाँ से यहाँ तक का, मतलब A से पूरा डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस मिलता है ये 4.5 मिलता है, राइट. 1 + 1 + 1 + 1.5, that is 4.5. After that, this RB is rotating in anti-clockwise direction about point A, therefore it is minus. So minus RB into distance, A से पूरा डिस्टेंस, राइट. A से अगर आप पूरा डिस्टेंस अगर लोगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो ये मिला है हमें 6 मीटर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, राइट. सो माइनस RB into 6. आफ्टर दैट दिस 2 किलोन्यूटन. सो 2 किलोन्यूटन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम आगे कर देते हैं ऐसे, राइट, ये आगे एक्सटेंड होगा ना ऐसे, यहाँ तक अगर सपोज हमने एक्सटेंड किया, तो फिर ये ऐसे रोटेट होगा पॉइंट ए के अबाउट, राइट, मींस एंटी क्लॉकवाइज. सो -2 into उसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इतना, राइट, ए से. So this perpendicular distance is 0.67. So -2 into 0.67. After that, ये 2 किलोन्यूटन ये भी अगर आगे एक्सटेंड किया यहाँ पर, राइट, तो ये भी कैसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो ये पर क्या आएगा माइनस. सो -2 into डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना दिया है 1, राइट. सो -2 into 1. ओके, सो -2 into 1. तो बस अभी आपको ये कैलकुलेशन करना है, और मुझे ये किसका वैल्यू 3.11 हाँ 3.11. 3.11 3.11 3.11 किलो न्यूटन है ना. आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस प्लस में Plus. प्लस में. प्लस मतलब में. क्या, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की वो सही है. हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी अपवर्ड, तो वो हो गया अपवर्ड. ओके, तो ये मोमेंट एट ए लेकर हमने आरबी भी कैलकुलेट कर लिया. अभी बाकी है वीए, राइट. वीए बाकी, तो वीए के लिए क्या, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे. समेशन ऑफ Fy. हाँ, Summation of y, समीकरण FY राइट. समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. हैंड रेज करके रखो. हाँ जयेश, जयेश सोनू ने. VA -5 हाँ -6 हाँ plus RB हाँ equal to 0.
हाँ प्लस आर बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ मीन सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज, जो वर्टिकल फोर्सेज है उनकी सम करनी है, जो ऊपर जा रहे हो प्लस, जो नीचे जा रहे हो माइनस। सो वी एंड आर बी आर गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर दैट आर प्लस, and 5 and 6 both are going in downward direction, therefore that are minus. So va minus 5 minus 6 plus rb is equals to 0। तो ये rb का वैल्यू पुट कर दो, आपको va का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ मुझे आंसर कितना आता है? 7.89. 7.89 7.89 kilonewton। Okay, and its answer is also positive, that means the direction we have considered for the va is correct, right? हमने जो भी डायरेक्शन एज्यूम की va की वो सही है, हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी अपवर्ड, तो ये आ गया अपवर्ड। ओके, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? सबको प्रॉब्लम समझ में आया क्या? सर। ओके, प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, सिर्फ इसमें अलग क्या था, अलग ये था कि बेंट अप पार्ट उन्होंने दिया था, मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट के बाद उन्होंने कुछ वर्टिकल पार्ट दिया था, बस वो आपको देखना था, राइट? तो वर्टिकल पार्ट था, उस पर आने वाला लोड हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, तो अभी और प्रॉब्लम देखते हैं। सर एक सेकंड कैलकुलेशन दिखाओ ना। दिख रहा है क्या? यस। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। A beam ABCD having a self weight 2 kilonewton per meter is subjected to additional load as shown. Find the support reaction at B and C, right? तो अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, राइट? आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, तो मैं पॉइंट बी से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, at point B there is hinge support, right? So how many unknowns will be there? 2, right? That is perpendicular to the surface and parallel to the surface। तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक परपेंडिकुलर एंड एक पैरेलल यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, आफ्टर द पॉइंट बी, आफ्टर द 3 मीटर ऑफ पॉइंट बी, राइट? 3 मीटर तक कुछ भी नहीं है, मतलब सपोज यहां तक, राइट? हाँ, उसके बाद वहां पर 2 मीटर पर जो आपका नेक्स्ट है, दैट इज पॉइंट सी है वो, राइट? ए बी सी डी। तो सी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, यहां से 2 मीटर पर, तो वहां पर आएगा आपका रोलर मीन्स 1 अननोन, राइट? 1 रिएक्शन, तो वो एक रिएक्शन मैंने दिखा दी, राइट? हाँ, उसके बाद 3 मीटर तक डी पॉइंट है 3 मीटर पर, राइट? तो मैं ये 3 मीटर कर देता हूँ, राइट? और ये हो गया अपना डी पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं, दैट इज डी। ये था सी, यहां पर होगा ए और ये होगा बी, राइट? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ओनली जो रिएक्शंस थी वो मैंने दिखा दिया, राइट? तो सपोर्ट कहां पर था? सपोर्ट पॉइंट बी पर था और पॉइंट सी पर था। तो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के जो कुछ भी रिएक्शंस थे वो मैंने दिखा दिया, राइट? आफ्टर नाउ नेक्स्ट, एट द पॉइंट डी, एट द पॉइंट डी देयर इज अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन। यहाँ पर क्या है, 10 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड है, एंड एंगल ऑफ दिस पॉइंट, एंगल ऑफ दिस 10 किलोन्यूटन पॉइंट लोड इज 10 डिग्री। तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? 10 किलोन्यूटन को डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्विंग इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। हाँ, राइट। उसको रिजोल्यूशन। क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे। तो उसको 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो, उसका एरो कहां पर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का? राइट। राइट। एंड Right वर्टिकल side. कंपोनेंट? एंड वर्टिकल कंपोनेंट? Upward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, उसका एरो डाउनवर्ड है, राइट? तो यहाँ पर ये आएगा और
ये डाउनवर्ड एरो। ओके, हाँ, तो फिर अभी इसके कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या आएगा? उसका एंगल 10 10 डिग्री sin है। 10. 10 sin 10, वेरी गुड। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 10 sin 10, एंड वर्टिकल कंपोनेंट 10 cos 8. 10 cos 10, राइट? 10 cos 10, उसका एंगल 10 डिग्री। सो 10 sin 10 एंड 10 cos 10, ये हमने कर लिया। ओके, इसके बाद अगर सी पॉइंट के पहले अगर आते हैं तो ये कौन से टाइप का लोड है? इसका नाम क्या है? ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर जो दिख रहा है, ये कौन से टाइप का Varying लोड load. है? Varying load, right? Uniformly varying load, right? That is uniformly varying load. So firstly we have to convert that uniformly varying load into the total load. क्या करना पड़ेगा? कितना वैल्यू आएगा टोटल लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? टोटल लोड में कन्वर्ट किया तो 5 kilonewton. हाँ, मतलब क्या कैलकुलेशन क्या होगा? Half into 5 into 2. Half into 5 Half into 5 into 2. हाँ, हाफ इंटू 5 इंटू 2, राइट? हाफ इंटू 5 इंटू 2 मतलब 5, राइट? कितने डिस्टेंस पर आएगा वो? एट 0.67 from C. 0.67 something. हाँ, मतलब आपने क्या किया? 1/3 ऑफ 2 किया होगा 1/3 ना? into base. Yes. हाँ, 1/3 ऑफ 2, दैट इज 0.67 फ्रॉम विच पॉइंट? C. सी, वो सी पॉइंट है यहाँ पर, राइट? ये जो है यहाँ पर ये सी पॉइंट होगा, राइट? सो फ्रॉम द पॉइंट सी। तो मुझे क्या करना है? ट्रायंगुलर लोड को मैंने टोटल लोड में कन्वर्ट किया एंड वी गेट द वैल्यू एज अ 5 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.67 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सी। तो मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ, यहाँ से ये सपोज ये 5 किलो न्यूटन है। सो दिस इज अवर 5 किलो न्यूटन एंड दिस डिस्टेंस इज 0.67। Okay, so this is 0.67. Okay, ये हो गया 0.67 डिस्टेंस, राइट? ओके, हाँ, आफ्टर दैट दिस रिएक्शंस एट पॉइंट बी, दैट इज एच बी एंड सपोज दिस रिएक्शन इज वी बी, ये हो गया। ओके, हाँ, अभी क्या बाकी है? अगर आप बीम की डायग्राम अगर फिर से देखोगे तो अभी पॉइंट ए बाकी है, राइट? पॉइंट ए पर क्या करोगे? ये पॉइंट ए का कोई बता सकता है क्या मुझे? पॉइंट ए पर क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने एक वर्टिकल पार्ट दिया है, एक वर्टिकल रॉड लगा दिया है, और इस रॉड को यहाँ पर उन्होंने दो फोर्सेस दिए, एक ये ऐसे यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये दो फोर्सेस है। आप क्या करोगे इनका? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा इसका? कोई बता सकता है क्या? कोणी सांगेल का? त्याचे सर तो 5-5 फिक्स्ड किलोमीटर? सपोर्ट है का? हाँ, फिक्स्ड सपोर्ट है क्या? का सर? नहीं, फिक्स Fixed सपोर्ट नहीं है। support. उन्होंने क्या किया है? नहीं, फिक्स सपोर्ट नहीं है। पॉइंट ए पर उन्होंने सिर्फ एक वर्टिकल, एक फिर से जैसे पिछला प्रॉब्लम था बेंट अप का, वैसे एक उन्होंने स्ट्रक्चर लगा दिया वर्टिकल, और उस वर्टिकल रॉड पर ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे। तो आप इन फोर्सेस का क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा उनका? एज इट इज रहेंगे. एज इट इज रहेंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं? कपलिंग. हाँ, कावेरी? कपलिंग सर. कपलिंग है, मतलब उसको कहना है कि वो दोनों जो फोर्सेस है वो कपल बना सकते हैं, राइट? सो दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 किलो न्यूटन, राइट? सो दैट बोथ द फोर्सेस आर हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो 5 किलो न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो फिर यहाँ पर अगर ऐसी अगर केस है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कपल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इनका मोमेंट कैलकुलेट करूंगा। सो m इज इक्वल्स टू, राइट? तो फिर इसका मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए के अबाउट। तो सबसे पहले आएगा ये ऊपर वाला जो 5 किलो न्यूटन है, ये वाला, ये 5 किलो न्यूटन वाला, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए आप बता सकते हो क्या? पॉइंट ए के अबाउट इस 5 किलो न्यूटन का मोमेंट कितना आएगा? Minus 0.40. माइनस
0.40. हा कसं आलं ते 0.40 पूर्ण सांग ना कॅल्क्युलेशन. 5 minus 5 into 0.8. 0.8 वेरी गुड. तो -5 इंटू 0.8 ये हो गया, ये 5 किलोमीटर का मोमेंट. अभी नीचे जो 5 किलोमीटर है उसका मोमेंट क्या आएगा? 5 into 0.4 प्लस और माइनस? plus Plus. प्लस क्यों? क्योंकि राइट में जा रहा है. Minus sir, minus. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना. प्लस कैसे क्या बोल रहे हो? ये 5 किलोमीटर भी तो ऐसे जाएगा ना, 0.1 क्या वोल्ट, ऐसे उल्टा ही रोटेट हो रहा है ना. एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा ना ये. तो दोनों जो फोर्सेस है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं. तो फिर इसका क्या आएगा अगेन? -5 इंटू 0.4. तो ये कैलकुलेशन अगर आप करके देखोगे तो करो तो कितना आता है? -5 इंटू 0.8 -5 इंटू 0.4 कितना आता है? देखो, 6. -6. हाँ, -6 किलो न्यूटन मीटर. तो ये आ गया -6 किलो न्यूटन मीटर. एंड -6 आ रहा है तो माइनस क्यों आया? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है. दोनों फोर्सेस कौन सा मूवमेंट बना रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे. तो फिर अभी मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों फोर्सेस है इनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा. इनको फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे. और उसकी जगह पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम मोमेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? मोमेंट. तो फिर जो अपनी फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें यहाँ पर ऐसे आएगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसका वैल्यू 6 किलो न्यूटन मीटर. मैं यहाँ पर माइनस नहीं लिख रहा हूँ. क्यों नहीं माइनस लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज. तो मैं अगर डायरेक्शन दिखा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे वहां पर माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गई अभी तक जो आपने डायग्राम देखी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम. यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है इस डायग्राम में तो पूछो. याच्यात कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा. No, sir. ओके. तो फिर अभी फिर से प्रॉब्लम पढ़ते हैं. तो फिर से अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम देखो क्या है. प्रॉब्लम की फर्स्ट लाइन देखो. A beam ABCD having a self weight 2 kilonewton per meter is subjected to additional load as shown. तो बीम ABCD में क्या है? उसका सेल्फ वेट भी है, एडिशनल लोड है, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है. डायग्राम में दिया नहीं है. उसके सिवाय वहां पर क्या है? एडिशनल लोड है. और वो क्या है? सेल्फ वेट है. और वो कौन से फॉर्मेट में दिया है? that is in given in the format of intensity, that is 2 kilonewton per meter. So that UDL is 2 kilonewton per meter. That is the additional load which is given in the format of self weight. तो self weight के फॉर्मेट में वहां पर UDL दिया है, that is 2 kilonewton per meter. So as its value is 2 kilonewton per meter, that means it is having a लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर. ये पर मीटर के लिए 2 किलोन्यूटन है. तो हमारा जो बीम है उसकी लेंथ कितनी है? 10. तो फिर लोड कितना हो जाएगा टोटल? 20. राइट. तो यहां पर हमें क्या करना होगा? सेल्फ वेट भी लिखना होगा. सो सेल्फ वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, दैट मीन्स 20 किलो न्यूटन. और ये जो कि ऑल ओवर द बीम अगर दिया है तो फिर ये कहां पर एक्ट होगा? उसके सेंटर में. तो बीम कितने मीटर का है? 10 मीटर का है. तो 10 मीटर का सेंटर मतलब 5. 5 तो मीटर. यहाँ पर, हाँ, 5 मीटर पर मतलब यहाँ पर ये आपका सेल्फ वेट आएगा, दैट इज 20 किलो न्यूटन. तो मैं यहाँ पर एक बार डिस्टेंसेस दिखा देता हूं. So this is 2 meter, this is 3 meter, this is 2 meter and this is 3 meter. तो 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे उन्होंने डिस्टेंसेस दिए. राइट. ओके. तो फिर ये हो गए सभी हमारे डिस्टेंसेस एंड ये पॉइंट लोड. तो फिर इस प्रॉब्लम में अलग क्या था? इस प्रॉब्लम में दो चीजें नहीं थी. एक तो ये कपल के लिए दो फोर्सेस दिए थे उन्होंने. उन दोनों फोर्सेस को हमने क्या किया? हमने कपल में कन्वर्ट कर लिया. राइट. वी हैव कन्वर्टेड दैट टू फोर्सेस दैट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर. We convert that two forces into couple
एंड दूसरा क्या था, दूसरा दिया था उन्होंने सल्फेट, जो कि इससे पहले किसी भी प्रॉब्लम में नहीं दिया था, राइट। इससे पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे उसमें वो सल्फेट नहीं दिया था. सो दैट सल्फेट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम and we have converted that sulfate into again a point load that is 2 into 10, that means 20 kilonewton, right. तो ये समझ में आया क्या, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, हे समजलं का सगळ्यांना? हो सर. प्रांजल कोठावदे, Yes, sir. प्रांजल घोंगडे, Yes, sir. कोमल, Yes, sir. अक्षत, Yes, sir. ओके, वेदांत, Yes, sir. ओके. तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं. तो अभी ये डायग्राम पूरी हुई और इस डायग्राम में अभी आपको दिख रहा है कि कितने अननोन है. तो अभी आप लोग बोलो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा इक्वेशन पहले ले? Sum of x. समेशन Summation ऑफ of x. ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. आप लोग हैंड रेज करो, मैं जिन हैंड रेज में से किसी को पूछूंगा समेशन ऑफ एफ एक्स. साक्षी, अंबुरे, HB एचपी plus 10 sin 10 is equal to Plus 0. 10 साइन 10 इज इक्वल्स टू 0. हाँ, तो फिर क्या आंसर आता है, कैलकुलेशन करो. minus 1.73. -1.73 73. किलोमीटर. आंसर माइनस में आ गया, इसका क्या मतलब है? Assumption wrong. हाँ, हमने क्या एजम्पशन किया था? Clock. एचबी का एजम्पशन हमने क्या किया है? HB is in right direction. हाँ, हमने एज्यूम किया है कि राइट डायरेक्शन दे. हाँ, तो फिर क्या करना होगा, फिर से वो प्लस में लिखना होगा और एरो भी कौन सा देना होगा मुझे यहाँ पर? Left side. Left side, because we have considered the direction of that HB is towards right, we have considered, but our value comes in minus, right. हमने जो भी कुछ आंसर निकाला, our answer comes in minus, that means our assumption was wrong, and our assumption was that we have considered that direction is towards right, that means it is not in the right direction, it is in left direction. तो ये left direction में हो गया, right. तो ये हो गया summation of fx. Now next, कौन सा इक्वेशन लेते हो? कौन सा Summation of लेना y. चाहिए? मोमेंटम समेशन ऑफ एफ वाय नाही चालणार ना. समेशन ऑफ एफ वाय जर घेतलं तर हा एच बी आणि आर सी हे दोघं येतील, राईट. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, समेशन ऑफ मोमेंट. तो समेशन ऑफ मोमेंट कहां पर लेते हो, कौन से B पॉइंट point. B से. पर? ए पर नहीं ले सकते क्या? B पे 2 unknown है सर इसके. हाँ, बी पर 2 अननोन है, इसलिए बी पर लेने से मतलब अननोन की टर्म जो है वो इक्वेशन में नहीं आएगी. सो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0. तो हैंडरेज करके रखो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी. मैं हैंडरेज में जो लोगों ने किया होगा उनमें से किसी को पूछूंगा. वही लोग है. ये लोग तो हर बार आंसर देते, नया कोई नहीं है इसमें, नया कोई नहीं है. और कोई? जास्तीत जास्त चुकणार आहे आपला आन्सर, त्याच्या पलीकडे काहीच होणार नाही. ज्यादा से ज्यादा गलत आएगा.
और अगर देखो तो सब बॉयज ही दिख रहे हैं, एक दो गर्ल्स है सिर्फ। बॉयज आर सिंसियर, गर्ल्स कुछ काम की नहीं है, सब बॉयज ही दिख रहे हैं मुझे, एक दो लड़कियां है सिर्फ। ओके, आतिश। हाँ सर करतोय 2 मिनिटं. ओके, आतिश कर रहा है तो फिर संदीप। 1 मिनिट सर. संदीप 1 मिनिट. संदीप 1 मिनिट सर. संदीप ओके। माइनस VB माइनस VB इंटू 2. इंटू 2। सर 1 मिनिट, माझा एक प्रॉब्लेम आहे. हाँ बोल। ते HB आणि 10 sin 10 आहे, त्याला घ्यायचं का सर? ते तू बघ ना, आता तू सांग ना, तुला तुला जे सांगायचं ते सांग तर खरी. मग आपण काय करू, त्यात तुझं काय चुकलं ते नंतर बघू ना. तू आधी सांग, तुला जसं वाटतं तसं. हो हो चालेल सर. मायनस जास्तीत VB जास्त चुकेल. हा, मायनस VB इंटू 2 इंटू 2 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 हा इंटू 1.33. इंटू 1.33। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर. मग 1.33 आणि त्याच्याऐवजी 2 3 4 5 5 आणि 5 6 6.33 6.33 मायनस RC हा इंटू 7 हा प्लस 10 cos 10 इंटू 10 प्लस 10 कॉस 10 इंटू 10 झालं। इज इक्वल्स टू 0. सर Is 1 मिनिट, equals to मला 0. पाहू द्या ना परत. हा बघ, मायनस VB इंटू 2 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू. हो सर बरोबर आहे. ओके ठीक आहे. आता मी दुसरं कोणाला तरी विचारतो त्यांचं काय मत आहे असं. ओके, आतिश हो गया क्या तेरा? सर 1.73. क्या 1.73? तर नाही, ते पहिल्यापासून सांग. अच्छा तू सांगतोय का? ओके बोल. 1.73 मायनस VB मायनस VB प्लस 20 प्लस 20 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 मायनस RC प्लस मायनस RC प्लस 10 sin 10 10 sin 10 मायनस सॉरी मायनस प्लस सर 10 cos 10 इक्वल्स टू 0. 10 cos 10 इक्वल्स टू 0. ओके, मला यातलं काहीच कळालं नाही आतिश. काय तू सांगितलं ना हे 1.73, हे देखो हम कौन सा टर्म ले रहे हैं, हम मोमेंट ले रहे हैं ना. मोमेंट मोमेंट म्हणजे काय आतिश? मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टन्स ना. तू एका पण डिस्टन्सने मल्टिप्लायच केलं नाही, फक्त फोर्सेसच सांगितलंय है ना. आतिशचं तर पूर्णपणे चुकलंय. हाँ श्रुति ललवानी, नहीं, हाँ चलो श्रुति ललवानी बोलो. -6 हाँ plus 20 into 5 प्लस 20 इंटू 5 plus 5 into 6.33 प्लस 5 इंटू 6.33 minus RC माइनस RC into 7 इंटू 7 plus 10 cos 10 प्लस 10 cos 10 into 10 इंटू 10 equals to 0. इक्वल्स टू 0. ओके, श्रुति ये भी गलत है. हाँ कोमल, शेवाड़े कोमल. 20 into 3 20 इंटू 3 ओके plus 5 into 4.33 5 इंटू 4.33 minus RC
into 5 into 5 plus cos 10 into 8 equal to plus 0. 10 cos 10 ना So into into 8 into 8 equal to 0. equal to 0. ओके. तन्मय बरोबर आहे का रे? माझं वेगळं आलंय सर. सांग तू तू सांग काय लिहायचं? -6 into 2 हम्म, plus 20 into 3 हम्म, plus 5 into 1.33 हम्म, plus 10 cos 10 into 8 हम्म. minus RC into 5. म्हणजे तू फक्त ते 6 into 2 ची टर्म वाढवली ना? हो. हा, पण मग ते पण चुकलेलं आहे. 6 into 2 ची टर्म पण. देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये अभी जो दो लोगों ने लास्ट वाले दोनों ने आंसर दिए, तन्मय आणि कोमल होती बहुत एक, राइट? ये इन लोगों ने जो आंसर दिए ये छोड़ के पहले जितने भी लोगों ने आंसर दिए सभी ने मोमेंट अबाउट ए ले रहे थे, ए से डिस्टेंसेस बता रहे थे, राइट? आतिश ने ए से डिस्टेंस बताया, संदीप ने भी ए से डिस्टेंस, बहुत सारे लोगों ने ए से डिस्टेंस बता रहे थे, राइट? लेकिन हम मोमेंट कहां पर ले रहे हैं? हमने तो पॉइंट बी चूज किया है ना, हम तो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ले रहे, तो आपने डिस्टेंसेस कहां से बताने चाहिए? पॉइंट बी से बताने चाहिए. तो पहले जितने भी लोगों ने आंसर बताया वो सबका गलत है, राइट? क्योंकि सर वो हाँ मी आधी सॉल्व केलं होतं ना, मी याच्या अबाउट घेतलं होतं म्हणून मी ते सांगितलं. अच्छा, तर तू एच्या अबाउट जर घेतलं तर मग व्हीबी आणि आरसी हे दोघं अननोन राहतील ना त्याच्यामध्ये, आपल्याला आन्सर मिळेल का? आपल्याला एच्या अबाउट मुवमेंट घ्यायचंच नव्हतं ना, एच्या अबाउट मुवमेंट घेऊन काही मिळतच नाही, म्हणजे इक्वेशन मिळतंय उगाच त्यामध्ये आपला वेळ वाया जाईल ना, म्हणून आपण काय घेतोय? बीच्या अबाउट मुवमेंट घेतोय ना. एच्या अबाउट मुवमेंट घेऊन पाहिजे तितका फायदा आपल्याला मिळत नाही. ओके, तो बीच्या अबाउट मुवमेंट घ्यावा लागेल. ओके, तो बी के अबाउट जब आप मूवमेंट लोगे तो सबसे पहले आएगा ये 6 किलो न्यूटन मीटर का ये मूवमेंट, ये कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऑलरेडी मूवमेंट है तो इसको और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो ये सिर्फ क्या रहेगा? -6. आफ्टर दैट पॉइंट बी पर अगर आप मूवमेंट ले रहे हो तो एच बी एंड वीबी का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 20 किलो न्यूटन. 20 किलो न्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस. सो 20 इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? 3, सो प्लस 20 इंटू 3, राइट? उसके बाद 5, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो +5 इंटू इसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे बी से यहां तक का, तो ये आएगा आपका, पहले का ये 3 है और उसके बाद ये 1.33, मतलब 4.33, तो ये 4.33 आपको मिलेगा, राइट? तो ये आएगा 5 इंटू 4.33. आफ्टर दैट दिस आरसी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज माइनस, सो माइनस आरसी इंटू डिस्टेंस इज 5, तो माइनस आरसी इंटू डिस्टेंस इज 5. आफ्टर दैट दिस 10 sin 10, 10 sin 10 वाला ये जो है ये हमने ऊपर निकाला है बीम के, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर है, ये अलोंग द बीम, ये यहीं पर होता है बीम के अलोंग, तो ये पॉइंट बी से ही पास हुआ होगा, तो उसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? 0. एंड आफ्टर दैट दिस 10 sin 10, इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस, सो 10 cos 10 इंटू डिस्टेंस इज 8. तो ऐसे ये मूवमेंट आएगा, राइट? तो फिर अभी आपको ये कैलकुलेशन करके सिर्फ आंसर बताना है मुझे. सर 30.88. 30.88 चेक करो, मेरे पास आंसर नहीं है, आप लोग चेक करो. 30.88 बरोबर आहे सर. येस हाँ सर. राइट, 30.89 या 30.88. 898. हाँ 89 या 88. आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही है. सो वी हैव कंसीडर्ड इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड, दैट मींस इट इज अपवर्ड, राइट? इट इज करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी समेशन ऑफ एफ वाई. नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? समेशन ऑफ एफ वाई. तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो कौन बताएगा? हैंड रेज करो जरा. समेशन ऑफ एफ वाई. हाँ ऋतुजा मेयर. VB हाँ plus 30.88 minus हाँ 20 minus 5 minus 10 cos 10 is equal to 0. -10 cos 10 इज इक्वल Is टू equal to 0. 0. वेरी गुड. अपवर्ड जाने वाले पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाने वाले नेगेटिव, सिंपल है. तो फिर करो ये कैलकुलेशन करो और वीबी का आंसर देखो कितना आता है. वीबी
3.96. 3.95. 3.9695 जो भी है, राइट. सो किलोमीटर. ये भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा होगा. पॉजिटिव में आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही है. तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया दैट मींस इट इज अपवर्ड, सो इट इज अपवर्ड. तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम समझ में आएगा, राइट. ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन तो बहुत ही छोटा होता है, कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर एक बार डायग्राम अगर बन गई तो कैलकुलेशन बहुत इजी, राइट. डायग्राम में आपने सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, सभी का डिस्टेंस अगर एक बार मिल गया तो फिर आगे का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, राइट. तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, राइट. किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, राइट. सर हम्म. मूवमेंट में 4.33 कहाँ से आया सर? ओके. 4.33. देखो हम मोमेंट 4.33 कहां से आया, तो 4.33 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से. मतलब ये 5 का डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस. यहां से मैं दिखाता हूं. मतलब 5 का डिस्टेंस बी तक का, मतलब ये जो अभी मैंने ग्रीन कलर में दिखाया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस. तो ये यहां से यहां तक तो 3 मीटर है, राइट. ये 3 मीटर. और फिर आगे का कितना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कहां से मिलेगा, इतना यहां से 20 से 5 तक का, मतलब ये डिस्टेंस कहां से मिलेगा आपको. ये टोटल कितना है, 2 मीटर है. 2 मीटर में से 0.67 माइनस करना पड़ेगा. 2 में से 0.67 माइनस किया तो ये आपको मिलेगा 1.33, राइट. तो 1.33 और ये 3 मीटर मतलब कितना हो गया, 4.33. इसीलिए ये क्या आ गया, 4.33. समझ में आया क्या, समझ ला का. ओके सर, ठीक है सर. ओके. तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा. सर ते सेल्फ वेटचं नव्हतं समजलं. हॅलो, काय. सर ते सेल्फ वेट कसं कॅल्क्युलेट केलं होतं ते समजलं नव्हतं. ओके. सेल्फ वेट जे आहे ना ते प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं होतं, है ना. त्याच्यासाठी प्रॉब्लेम मध्ये जावं लागेल आपल्याला. हे बघा, अ बीम एबीसीडी हॅव्हिंग अ सेल्फ वेट 2 किलो न्यूटन पर मीटर. त्याची इंटेन्सिटी किती, 2 किलो न्यूटन पर मीटर. म्हणजे एका मीटरला 2 किलो न्यूटन, एका मीटरला 2 किलो न्यूटन. मग आपला बीम कितीचा आहे, आपला बीम 10 मीटरचा आहे ना टोटल, ए पासून तर डी पर्यंत पूर्ण किती मीटरचा आहे, 10 मीटरचा आहे. मग एका मीटरला जर 2 होतं तर मग 10 मीटरला किती होणार आहे, 20. मग ते इथे लिहिलं होतं आपण सेल्फ वेट. सो 2 into 10 म्हणून ते 2 into 10 आलं. मग ते 2 into 10 म्हणजे 20. मग हा 20 किलो न्यूटन इथे. आणि ते कुठे दाखवायचं असतं, तर जो काय बीमचा सेंटर असेल त्याला. तर बीमचा सेंटर किती होता, बीम इज हॅव्हिंग अ 10 मीटर स्पॅन. सो देअरफॉर इट सेंटर इज 5 मीटर फ्रॉम ईच एंड. तो 5 मीटर इकडून किंवा 5 मीटर इकडून, म्हणून तो 5 मीटरवर आपण दाखवला. कळालं का अनुजा. येस सर. सर मुवमेंटचं एकदा सांगा ना फक्त, तिथं लास्ट 5 into ते कसं केलं. ओके. हे बघा, मोमेंट घेतोय आपण पॉइंट बी ला. ओके. ओके. आपण पॉइंट बी ला मुवमेंट घेतोय. तर सगळ्यात आधी काय येणार आहे, हा 6 किलो न्यूटन मीटर. हा कसा रोटेट होतोय, अँटी क्लॉकवाईज, म्हणून तो काय आला -6. त्याला काही डिस्टन्सने मल्टिप्लाय करायची नाहीये कारण की तो डायरेक्टली मोमेंट आहे, बरोबर. मग तो -6 आला. त्यानंतर 20 इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देअरफॉर इट इज प्लस. सो 20 इंटू त्याचा डिस्टन्स, बी पासून हे डिस्टन्स किती आहे, 3 मीटर, म्हणून 20 into 3 है ना, 20 into 3. आफ्टर दॅट दिस 5 किलो न्यूटन. 5 किलो न्यूटन इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. पण मग आता 5 पर्यंतचा डिस्टन्स घ्यावा लागेल, म्हणजे हे डिस्टन्स. मग हे 3 मीटर ऑलरेडी होतं, त्यात हे जे आहे हे ऍड करावं लागेल. मग हे डिस्टन्स कुठून येणार आहे एक्स्ट्रा, 20 to 5 पर्यंतचा डिस्टन्स कुठून येणार आहे, तर खाली जर बघितलं, बघा खाली जर बघितलं तर हे डिस्टन्स किती आहे, 2 मीटर है ना. 2 मीटर मधून हा जर आपण 0.67 जर मायनस केला तर आपल्याला हे डिस्टन्स मिळेल ना, बरोबर. 2 मधून 0.67 जर मायनस केला तर हे किती मिळतं, 1.33. आणि आपल्याला कुठून पाहिजे होतं, बी पासून पाहिजे होतं, म्हणजे हे डिस्टन्स किती आहे, 3 मीटर. सो दिस 3 मीटर प्लस 1.33 दॅट इज 4.33. देअरफॉर 5 into 4.33. कळालं का हे अनुजा. हो सर. हा. आणि त्याच्यानंतर मग
RC is rotating in anti-clockwise direction, therefore it is minus. So minus RC into its distance is 5. RC चा distance 5 आहे आणि त्याच्यानंतर 10 cos 10, it is rotating in clockwise direction, therefore it is plus. So 10 cos 10 into त्याचं distance B to D पर्यंतचा total distance, that is 3 plus 2 plus 3, that means 8. कळालं का अनुजा? सर याच्यात 10 sin 10 का नव्हता घेतला? हा 10 sin 10 का नव्हता घेतला? बिकॉज 10 sin 10 हा जो फोर्स आहे हा बीमच्या अलॉंग आहे ना, हा बीमच्या अलॉंग आहे. तो ऍक्च्युली तो वरती दाखवलाय, म्हणजे तो वरती नसतो, तो तुम्हाला दिसण्यासाठी तो वरती दाखवला. ऍक्च्युली तो कुठे असणार आहे? तो बीमच्या अलॉंग असणार आहे. मग बीमच्या अलॉंग जर असेल तर तो असा मागून आलेला असेल ना, म्हणजे तो पॉईंट बी मधूनच पास झालेला असेल. पॉईंट बी मधून जर पास झाला असेल तर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती होणार आहे? 0. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जर 0 असेल तर मोमेंट किती येणार? 0. म्हणून तो 10 sin 10 लिहिण्याची गरज नाही, त्याचं मोमेंट झालं 0. कळालं? ओके सर. हो सर. ओके.